Hi, dear students. Myself Naresh Dhakad, ITM University Assistant Professor in ITM University Gwalior, Department of Entomology, School of Agriculture Science. So today we talking about on order Arthroptera. Order Arthroptera means Artho means straight and ptera means wings. So Arthroptera means straight wings. The most examples of this order: cricket, grasshopper, locust, mole cricket, etc. And the most important characteristics of this order is usually medium or large size of insects with elongated body, यानी कि इसके जो इंसेक्ट होते हैं वो मीडियम और लार्ज साइज के होते हैं और elongated बॉडी होती है उनकी. देन हेड इज हाइपोजेनेटस और प्रोजेनेटस with long in suborder Ensiphera and short in Celifera, usually filiform type of antennae. मीन्स इसका जो हेड होता है वो हाइपोजेनेटस या प्रोजेनेटस टाइप का होता है. इसके अलावा जो सब ऑर्डर होता है इसका वो एंसीफेरा, उनमें लॉन्ग हेड पाया जाता है, और सेलिफेरा सब ऑर्डर होता है उसमें शॉर्ट हेड पाया जाता है. इसके अलावा इनमें फ्लिफॉर्म टाइप की एंटीनी पाई जाती हैं. इसके अलावा नेक्स्ट, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट्स विद वेल डेवलप्ड एंटीनी. मीन्स इसके जो इंसेक्ट होते हैं उनमें बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट पाए जाते हैं, और इसका जो मोस्ट पार्ट होता है मैंडिबल, वो वेल डेवलप होता है. इसके अलावा इसमें जो विंग्स होते हैं वो दो जोड़ी होते हैं. फर्स्ट, ऊपर वाले विंग्स को फोर विंग्स बोलते हैं, और नीचे वाले विंग्स को हैंड विंग्स बोलते हैं. फोर विंग्स के ऊपर भी एक मेजर, फोर विंग्स जो होते हैं वो लेदरी होते हैं और टफ होते हैं, और इनके ऊपर एक मोस्ट ऑर्गन्स पाया जाता है जिसको हम स्ट्रीड्यूलेटोरियल ऑर्गन्स या साउंड प्रोड्यूसिंग टाइप ऑर्गन्स बोलते हैं. जनरली ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स ग्रासहॉपर, क्रिकेट या इसके सदस्यों में दो टाइप होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स प्रेजेंट इन Arthroptera insects. First is ellery type sound producing organs. Second is femero-ellery types of sound producing organs. So sound producing organs, sorry, ellery types sound producing organs present in cricket. Generally, ellery is a name of muscles present in wings. So when both forewings are rubbed with each other and producing a sound, so that name of this type of sounds ellery stridulatorial or sound. Then next type of stridulatorial organs or uh, sound producing organs is femero-ellery types of sound producing organs. So femero-ellery types sound producing organ present in especially grasshopper. uh, Generally femur is a name of parts present in the hind leg of grasshopper. So and ellery is a muscles present in the wings of muscles. So both ellery muscles and femur are rubbed with each other and producing a sound, so this name is femoro-ellery sound producing organs. Then uh, another most characteristics are present on the first abdominal segments. That characteristics or organs is tympanial or auditory organs. Generally these are present on the first abdominal segments of the insects, on either side of the first abdominal segments, or at the base of fortibia. The insect of this type of insects normally developed or four leg modified into digging form as in mole crickets, or hind leg modified for jumping or saltatorials in grasshopper. Means
जो मोल क्रिकेट होता है उसकी 4 लेग होती हैं, वो डिगिंग फॉर्म में मॉडिफाइड होती हैं, और ग्रास हॉपर होता है उसकी हाइंड लेग जो होता है वो जंपिंग और साल्टेटोरियल फॉर्म में मॉडिफाइड होती हैं। इनकी जो टर्साई होती है या टार्सस होती है वो 3 से 4 सेगमेंटेड होती है। इसके अलावा जो मेल जेनिटेलिया होती है वो बर्ड शेप टाइप की होती है और 9 एब्डोमिनल सेगमेंट्स पे पाई जाती है। इसके अलावा फीमेल जेनिटेलिया जो होती है, या वी कैन से टोटल segments in the abdomen of grasshopper, nearly total number of total segments is 11. So 9 and 11 segments, sorry, 8 and 9 segments bear uh, female genitalia and only 9 segments bear male genitalia. So फीमेल जो होता है वो वेल डेवलप ओविपोजिटर होता है उसमें। इसके अलावा 3 पेयर ऑफ वॉल्व होते हैं। ये वॉल्व जो होता है इसका मेजर वर्क होता है कि इंसेक्ट एगलिंग के टाइम इसको जो सोइल के अंदर एगलिंग करता है उस समय सोइल के अंदर ड्रिलिंग करने के काम आता है वॉल्व, 3 पेयर ऑफ वॉल्व। इसके अलावा इसके लाइफ सेगमेंट्स में एक ऑर्गन्स पाया जाता है जिसको बोलते हैं सरसाई। वो सरसाई होती है वो वेल डेवलप होता है और शॉर्ट होता है, और इसके अलावा अनसेगमेंटेड होता है। इसके अलावा इस टाइप के इंसेक्टों में मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, वो इनकम्प्लीट होता है और सिंपल टाइप का होता है। इनकम्प्लीट और सिंपल टाइप का मेटामॉर्फोसिस वो होता है जिसमें मेजरली उसकी लाइफ साइकिल में मेजर 3 स्टेप होती हैं। फर्स्ट स्टेप एग, सेकेंड स्टेप निम्फ, थर्ड स्टेज एडल्ट। जनरली ये टाइप के जो इंसेक्ट होते हैं वो एक्सोटेरिक टाइप के इंसेक्ट हैं, या ऑर्डर जो आर्थोप्टेरा आता है वो एक्सोटेरिगोट टाइप के ऑर्डरों में आता है। और जितने भी ऑर्डर एक्सोटेरिगोट होते हैं उनमें इनकम्प्लीट टाइप का मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस मीन्स या एक्सोटेरिगोट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ विंग्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी। इसके अलावा इस टाइप के इस ऑर्डर में जो फैमिली हैं इसकी 2 मुख्य फैमिली हैं जो अपने एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस के हैं। फर्स्ट फैमिली नेम इज एक्रिडिटी। द मोस्ट एग्जांपल ऑफ एक्रिडिटी फैमिली इज शॉर्ट हॉर्न ग्रास हॉपर। शॉर्ट हॉर्न ग्रास हॉपर तो एंटीनी जो होती है वो फ्लिपफॉर्म टाइप की होती है इस टाइप के ऑर्डर, इस टाइप की फैमिली में, एंड शॉर्ट होती है, शॉर्ट देन द बॉडी एंड विद द लेस देन 30 सेगमेंट्स। इसकी जो एंटीनी होती है शॉर्ट हॉर्न ग्रास हॉपर की और एक्रिडिटी फैमिली के मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की, वो 30 सेगमेंटेड होती है, फ्लिप फॉर्म टाइप की होती है, और बॉडी की उसकी टोटल बॉडी की पिक्चर शॉर्ट होती है। इसके अलावा जो प्रोनोटम होता है वो सैडल शेप होता है। Auditory organs or tympanial organs situated on the either side of first abdominal segments. ऑडिटरी ऑर्गन्स या टिम्पोनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो एब्डोमेन के फर्स्ट सेगमेंट्स पर पाए जाते हैं दोनों साइड में। इसके अलावा स्टिड्यूलेटोरियल ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें शॉर्ट हॉर्न ग्रास हॉपर में फ्यूमेरो एलरी टाइप पाए जाते हैं, और इसकी जो हाइंड लेग होती हैं वो जंपिंग फॉर्म में मॉडिफाइड हो जाती हैं, और टर्साई जो होती है वो 3 सेगमेंटेड होती है। इसके लिए इतना याद रखना कि जो एक्रिडिटी फैमिली की टर्साई होती है वो 3 सेगमेंटेड होती है, और टेटिगोनिडी फैमिली की जो सरसाई होती है वो 4 सेगमेंटेड होती है। तो इसका नेक्स्ट मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हाइंड लेग मॉडिफाइड फॉर जंपिंग एंड टार्सस आर 3 सेगमेंटेड। ओविपोजिटर जो होता है इनका वो शॉर्ट होता है, वेल डेवलप होता है, इट्स वॉल्व आर शॉर्ट एंड कर्व। हाँ, these are the this type of insect or the examples of this type of family प्लांट फीडर होते हैं और ऑफ्टन वेरी डिस्ट्रक्टिव होते हैं। मतलब कहने के है कि ये प्लांट को फीड करते हैं और बहुत ज़्यादा लॉस होता है। आपने देखा होगा कि अभी इस टाइम के जो इसका मोस्ट एग्जांपल ऐसे कि टिड्डी यानी कि लोकस्ट का जो अटैक हुआ था वो कितना डिस्ट्रक्टिव था। तो वो दिस इंसेक्ट द लोकस्ट इज ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम दिस ऑर्डर। The most examples of this type of family, rice grasshopper. The scientific name of rice grasshopper is Helioglyphus banian, and rice small grasshopper Auxilia chinensis, cotton grasshopper, uh, इसके अलावा Calotropis grasshopper etc. This is a most characteristics and examples of Acridiidae family. Now the next most important family of this order, Tetygonidae. Tetygonidae, the in the Tetygonidae, longhorn grasshopper belong from
family Tetragonidae. The most characteristics of this type of insects, क्रिप्टिक कलरेशन, इसका जो कलर होता है वो क्रिप्टिक टाइप का होता है। इसके अलावा एंटीना लॉन्ग एज और लॉन्गर देन द बॉडी। इसकी जो एंटीना होती है, इसका सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी एंटीना जो होती है इसकी इंसेक्ट की बॉडी से भी बड़ी होती है, यानी कि टोटल बॉडी की अपेक्षा लॉन्गर होती है। तो इसके एंटीने को देखने से ही आप पता लगा लोगे कि दिस इज लॉन्ग ग्रास ऑफर और शॉर्ट ग्रास ऑफर। इसके स्टेरिडोलिटोरियल जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो एलरी टाइप के पाए जाते हैं, यानी कि साउंड प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गन्स होते हैं, या इसमें जो साउंड प्रोड्यूसिंग होते हैं वो फोर विंग्स से होता है, क्योंकि एलरी टाइप्स मसल्स प्रेजेंट ऑन द विंग्स। सो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स और स्टेरिडोलिटोरियल ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द विंग्स। इसके अलावा इसका मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मेनली जो हर्बीवोरस होते हैं, बट समटाइम्स सम इंसेक्ट्स आर इन कार्निवोरस characters. The most examples of this type of family, surface grasshopper, Conocephalus indicus is a scientific name है. So dear students, this is our mm, characteristics and most family of order Arthroptera. We are completed this topic already. So if you have any question, so please talk to me anytime or individually. Thanks.